close till I get up. Time is barely on. So good morning students, I'm Deepak sir and welcome to my channel Deepak sir's Chemistry Zone, and this is the fourth lecture today for solid state chemistry. दोस्तों आज तक हमने अभी तक जो देखा है, let us recall it short. पहले लेक्चर में देखा था what is solid state, okay, what is the difference between the crystalline and the amorphous solid, space plate type देखा था, यूनिट सेल देखा था, 2D में 5 होते हैं, 3D में 14 होते हैं, क्रिस्टल हैबिट्स देखा था हमने, ऑल दोज थिंग विद एग्जांपल्स. फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा था अरेंजमेंट्स कैसे होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. 3D में हमने देखा था सिंपल क्यूब, बीसीसी एंड एफसीसी. एफसीसी साथ में एचसीपी भी हमने देखा था. रिमेंबर एफसीसी एंड सीसीपी आर सेम. ओके, हमने इनके बीच में फर्क देखा था, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखा था, हमने स्टैकिंग पैटर्न देखा. उसके बाद के लेक्चर में हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. ओके, सिंपल क्यूब, बीसीसी, एफसीसी, रैंक उसको जिसको बोलते हैं रैंक हमने देखा. उसके बाद हमने देखा था ए एंड आर का रिलेशन. ओके, आज के इस लेक्चर में हम पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट. और दूसरी बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होती हैं जो हम देख चुके हैं, लेकिन उनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर होती हैं. सो हियर वी गो. ओके फ्रेंड्स, सो इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी. सो व्हाट इज मीन बाय द टर्म पैकिंग एफिशिएंसी? सिंबल इज ईटा. ओके, so packing efficiency of unit cell is defined as the percentage of the total volume occupied by the atoms or the ions in the unit cell. Okay, तो एक यूनिट सेल में उसका वॉल्यूम तो होगा ए क्यूब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यूब्स ओनली. सो इसे क्यूब, तो इस टोटल वॉल्यूम में एटम्स का टोटल कितना ऑक्यूपेंसी होता है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. सो eta is equal to volume of atoms or ions upon the volume of unit cell, and hence we can write this way: eta is equal to z. Z means rank of the cell, that means total number of atoms or ions multiply by the volume of each atom or ion. और यहाँ पे हम उनको स्फेरिकल मानते हैं, तो 4/3 pi r cube is the volume of one atom upon a cube. तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट व्हाट? परसेंटेज occupancy. That is the packing efficiency of unit cell. So now we'll find out the packing efficiency of simple cubic unit cell. For simple cube, Z is 1 and A is equal to 2R. This we have seen earlier. Okay, remember. So eta equal to Z into 4/3 pi r cube upon a cube. So we'll put the values of Z as 1. Okay, and instead of A we'll keep 2R. Okay, ताकि r cube कट जाएगा. So we get this eta equal to pi/6. Remember this thing, this is also important. Sometimes in MCQ they have asked in terms of pi, what is the percentage efficiency or what is the efficiency or the fraction occupied in simple cube? Is pi/6. Remember, we'll put the value of pi as 3.14. okay, so we got this, and therefore percentage में ये value होगा 52.33 percentage. Sometimes even the unoccupied volume has been asked. Okay, this was asked in NEET 2017 कि in BCC unit cell what is the unoccupied space. Okay, that is the efficiency. किस में से करेंगे माइनस? 100 में से. Okay, so 100 minus this. So this is the empty space in simple cube. So I hope you got this. Okay friends, so now we'll do the packing efficiency of FCC unit cell. For FCC unit cell, Z is 4. Okay, that is the rank of the cell is 4.
ये हमने पहले किया हुआ है। एंड ए और आर का रिलेशन ए इज इक्वल टू 2√2r, ये भी हमने डिराइव किया था। सो ईटा इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन ए क्यूब। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड a को हमने 2√2r की फॉर्म में लिखा एंड ऑन सिंप्लीफाई वी गेट दिस। रिमेंबर ये भी इम्पॉर्टेंट है पाई के फॉर्म में। सिंपल क्यूब में पाई/6 था, एफसीसी में एफसीसी के अंदर पाई/3√2। ओके, इसको भूलना मत। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई वी गेट 0.74 and so percentage is 74. Okay, and unoccupied volume is 26%. So this was about the packing efficiency of FCC unit cell. Board may question can be asked, derive the packing efficiency of the following unit cells. So now we'll see the packing efficiency for BCC unit cell. Now for BCC unit cell we know these things. Z, that is the rank of the cell, is 2 और A और R का रिलेशन होता है A is equal to 4/√3r. Don't forget this. Okay, so eta is equal to Z into 4/3 pi r cube upon A cube. Keeping the values, okay, and simplifying we get in terms of pi. मैंने कहा पाई की टर्म में आना चाहिए √3/8 पाई. ओके, एंड कीपिंग द वैल्यूज वी गेट अराउंड 0.679. वी कैन टेक इट एज 0.68, दैट इज 68%. ओके, एंड अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज 32%. So students, please remember the derivation of the unit cells packing efficiency can be asked. Okay friends, so now we'll see one of the most important part of this chapter, and that is the voids in FCC or CCP. Okay, and their location. हमने देखा था FCC CCP जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ओके, तो हमने देखा था कि जब दूसरा लेयर रखते हैं, फर्स्ट लेयर इज अरेंज एज अ हेक्सागोनल 2D पैकिंग. ओके, जब दूसरा लेयर हम रखते हैं, ओके, फर्स्ट लेयर इज़ ऑलमोस्ट लाइक दिस. यू कैन इमेजिन, जो हमने किया था शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये एटम्स ऑक्यूपाई द डिप्रेशन. सो दिस इज द हेक्सागोनल 2D पैकिंग. नाउ व्हेन वी गेट द सेकेंड लेयर, वो हम रखते हैं ऑन द डिप्रेशन मेड बाय द एटम्स इन द फर्स्ट लेयर. सो दो तरह का वॉइड होता है ऑब्टेन. ओके, वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय द 4 एटम्स. आप यहाँ देख रहे हो एक एटम नीचे है और 3 एटम उसके ऊपर मर्ज हो रहा है. सो ये जो वॉइड बना दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, बिकॉज 4 एटम के सेंटर को आप अगर जोड़ोगे, ओके, तो यू गेट अ टेट्राहेड्रॉन. सो इमेजिन दिस थिंग कि ये जो है सेंटर्स हैं 3 एटम के एक लेयर में और एक एटम उनके ऊपर या नीचे भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वॉइड इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये भी हमने देखा था. ए 6 एटम से बनता है. ओके, 6 एटम्स. सो यू कैन सी हियर 3 एटम नीचे है और 3 एटम इस तरह से रखा हुआ है. सो इफ वी सी दिस थिंग इन एक्सपांड फॉर्म, यू कैन सी, कई लोगों को सवाल होता है कि 6 एटम से बनता है वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं. ओके, इमेजिन दिस थिंग, एक सरफेस है, ये एक लेयर है. ओके, 1 2 3 4 एटम हमने रखा है एक प्लेन में, सपोज एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 एटम ही हुआ और एक सेंटर हुआ. ओके, सो यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि ये जो वॉइड बना है ये 6 एटम से घिर के बना है. ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप अगर देखोगे ए फेस जोड़ोगे इससे, तो दिस 1 फेस, दिस इज सेकेंड फेस, ए थर्ड फेस और ए पीछे से फोर्थ. 4 साइड ऊपर बनेगा, 4 फेस का एक स्ट्रक्चर और नीचे 4 फेस का बनेगा. दैट मीन्स 8 फेसेस होंगे इसके 3D स्ट्रक्चर में, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज octahedral void. Okay,
एक ही बात ध्यान देना है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है 4 एटम से एंड ऑक्टाहेड्रल 6 एटम से FCC और CCP के अंदर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट दिस थिंग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं और टेट्रा कितना होता है? सो इफ देयर आर n एटम्स इन द HCP और FCC अरेंजमेंट, अगर n एटम है तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा उसमें, और उसका दुगना 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ओके, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड 2 तरह का बनता है, एक जो ऊपर से दिखता है और एक जो ऊपर से नहीं दिखता। मान लो कि 3 एटम नीचे हो और 1 एटम तुमने ऊपर रखा है, तो यू कैनॉट सी द वॉइड फ्रॉम द टॉप। और दूसरा बनता है कि 1 एटम नीचे और 3 एटम ऊपर मर्ज हो उसके, ये वॉइड हमें दिखता है, रिमेंबर। ओके, सो octahedral void formed is always double than the tetrahedral void formed is always double than the octahedral voids. Okay, remember this thing. So this is also one of the most important part. Now friends, we'll see the location of the voids कि ये voids FCC में कहाँ कहाँ पे located होते हैं, remember. And one thing more to be noted here, सिर्फ FCC या CC में ही हम ये voids पढ़ने वाले हैं। ओके, तो these voids आर प्रेजेंट इन FCC और CCP, हमने देखा था उसके अरेंजमेंट के अंदर। सो फॉर अ परफेक्ट FCC Z कितना होता है? 4, दैट इज रैंक ऑफ द सेल इज 4। और हमने जस्ट अभी नोट किया था कुछ देर पहले कि इफ देर आर n एटम्स इन द यूनिट सेल देर आर n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो पर सेल 4 एटम होने कारण 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो वॉइड का मतलब खाली जगह जो एटम से घिर के बनता है। ओके, तो पहले हमें जानना है द लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इतना मालूम पड़ गया कि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, वो 4 कहाँ कहाँ है वो आपको आना चाहिए। ओके, सो हियर वी गो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें पता है वो 6 एटम से घिर के बनता है, 6 एटम इन क्लोज कॉन्टैक्ट। नाउ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ बनता है बॉडी के सेंटर में, यूनिट सेल है, आप देख रहे हो एटम्स कॉर्नर पर हैं और फेस के सेंटर पे हैं, ये सब फेस सेंटर है। अब देखते हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम से कांटेक्ट में मिलके एक ए वॉइड जो बॉडी के बीचों बीच पैदा हो रहा है, दिस इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो रिमेंबर, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है। ओके, अब बचा 3 और ढूंढना, और 3 कहाँ पर है? ओके फ्रेंड्स, तो हमने 4 में से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेट कर लिया है, दैट इज बॉडी सेंटर। ओके, दिस वन। अब बाकी 3 कहाँ पर हैं? आओ अभी हमें वो ढूंढना कि वो 3 कहाँ पर हैं। नाउ जस्ट सी द एजेस। टोटल 12 एज होता है, हमने देखा था, और एक एज का सेंटर ले लो। नाउ दिस इज द एज सेंटर, ये वाला एज है, ये उसका सेंटर है। अब ये सेंटर के आसपास कितने एटम टोटल कवर करते हैं इसको? तो एक एटम इधर, एक इधर, एक इस प्लेन में और एक बाजू वाले सेल के प्लेन में, और एक ऊपर वाले प्लेन में और एक नीचे वाले प्लेन में। सो 1 2 3 4 5 6। तो एक एज सेंटर 6 एटम से घिर के बनता है। रिमेंबर, जैसे ये एज हुआ तो इस एज पे जो सेंटर होगा इसका, ये 6 एटम से घिर के बनेगा। ओके, मतलब एवरी एज सेंटर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर ऑन द 12 एजेस फिर तो। ओके, बिकॉज 12 एजेस हैं तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए, बिकॉज हर एक एज सेंटर पे एक वॉइड होता है। लेकिन एक बात तुम्हें आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, 1 एज इज कॉमन अमंगस्ट 4 यूनिट सेल्स, बिकॉज एक एज का पूरा पार्ट एक का नहीं होता है, वो 4 में कॉमन होता है। तो एक के पास कितना आएगा उसका कंट्रीब्यूशन? 1/4। ये हमने देखा हुआ था। तो टोटल 12 हैं, 12 एजेस, तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक के पास कितना आ गया? 12 का 1/4,
that is 3. So it is very clear 3 octahedral voids are on the 12 edges. टोटल 4 octahedral void कहाँ पर हैं? Remember this thing, 1 octahedral void is in body center and 3 octahedral voids are on edge centers. Okay students, now we have to look at the octahedral voids. तो octahedral voids कहाँ होता है? Remember 8 होना चाहिए, बिकॉज हमने पहले बात कर लिया है 4 अगर होगा octahedral void तो उसका दुगना होगा tetrahedral voids. So tetrahedral voids कहाँ हैं? ये है हमारा F का यूनिट सेल. यू कैन सी ABCD ऊपर का प्लेन है, ओके, और नीचे है EFGH. क्लियर? ये बॉडी सेंटर है. एंड वी नो दैट एब्सिस में एटम कहाँ होता है? एटम्स होता है कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर में होता है. जैसे ये फेस सेंटर हुआ, सामने का ये फेस सेंटर हो गया, ओके, ये फेस सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया. सो दीज आर 6 फेस सेंटर्स और ये बॉडी सेंटर है. रिमेंबर, और एक कॉर्नर्स पर एटम है जिनको मैंने ABCDEFGH लिखा हुआ है. अब अगर इस क्यूब को मैं 3 प्लेन में काटता हूँ, ओके, लेट दिस बी फर्स्ट प्लेन एंड से वी कॉल इट X प्लेन. ये X वाला प्लेन से मैंने काटा पूरे को, तो 2 पार्ट बनेगा. इनको हटाया नहीं मैंने, और फिर एक मैंने इस प्लेन से Y प्लेन हम मान लेते हैं, यहाँ से ऐसे काटा. तो सोच के देखो कितना बनेगा. पहले 2 बना था, फिर ऐसे काट दिया तो 4 बन जाएगा. फिर मैंने इस प्लेन से, ये जो प्लेन अंदर जा रहा है, दिस इज द Z प्लेन सपोज, इससे अगर मैं काटता हूँ तो डेफिनेटली आई विल गेट नाउ 8 क्यूब्स. 4 ऊपर और 4 नीचे. मतलब हमने क्यूब को 3 प्लेन में काटा है, X प्लेन में, Y प्लेन में और ये Z प्लेन में. यू कैन सी जो मैं डार्क से बनाया हुआ है. तो 8 क्यूब मिलेगा. कैसे? X प्लेन में पहले काटूंगा क्यूब को, 2 पार्ट बनेगा. फिर मैंने Y से काटा तो 4 हो जाएंगे, और फिर Z से मैंने काट दिया पूरा, ओके. सो आई विल गेट हाउ मच? 8. और उसका एक क्यूब मैंने उठाया 8 में से. सो दिस इज द क्यूब. यू कैन इमेजिन एक कॉर्नर है, मान लो एक किसी का कॉर्नर है, कोई भी से का, मान लो ये पॉइंट A है जो मैंने यहाँ बताया. तो यू नो कि यहाँ पे एटम नहीं होगा. देखो ये एटम यहाँ नहीं है, अगर ये A है, यहाँ पे एटम नहीं है. दिस इज व्हाट? एज सेंटर, ओके. तो दिस इज एज सेंटर, दिस इज ऑल्सो एज सेंटर. यहाँ भी एटम नहीं होगा. ये है नीचे, अंडरस्टैंड हियर, ये है नीचे यहाँ पर, ये हम पॉइंट यहाँ आ रहे, इधर ये वाला, ये एटम है कि फेस सेंटर हुआ. फिर ये एटम यहाँ पे नहीं, ये वॉइड है. दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इवन एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए. ये बॉडी सेंटर है, दिस इज बॉडी सेंटर. ये एच सेंटर, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया. और ये एटम एक कोने का है और ये 3 फेसेस का है. अगर ये कोना मानता हूँ A, तो ये 3 एटम कौन से हैं? ये वाला एटम ये वाला है, ये एटम कौन सा है? दिस वन. ये एटम कौन सा है? दिस वन. और ये तुम कौन सा पॉइंट है? हमारा बॉडी सेंटर. यू कैन सी 4 कॉर्नर्स पर एटम है 8 में से, और बीच में जो वॉइड बनेगा दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड. हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड इज मेड बाय 4 एटम. लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स से अगर नहीं समझ पड़ रहा है, सिंपल समझना. इस क्यूब को आप देखिए, यहाँ पर टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे. यू नो व्हाट इज बॉडी डायगोनल? जैसे ये पॉइंट A है, नीचे के प्लेन के अपोजिट वर्टेक्स को, जैसे ये H है, उसके डायगोनली अगर हम पॉइंट ज्वाइन करेंगे, सो इट विल पास टू द सेंटर. ऐसे 4 होंगे. यू कैन इमेजिन 1,
ओके, ये 2, वैसे 3 और ये 4। तो ये मैंने एक बना है बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल। मैंने लिया है ए और एच, मान लो दिस इज ए एंड दिस इज एच। ये हो गया बॉडी सेंटर बिल्कुल बीच में, और बॉडी सेंटर इन कॉर्नर का मिड पॉइंट, बस वो होता है टेट्राहेड्रल। जैसे यहाँ पर टेट्राहेड्रल, यानी कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल, रिमेंबर। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितना होगा टोटल? 8। तो 1 बॉडी डायगोनल हैज़ 2 tetrahedral voids, and there are total how many such diagonals? 4. You can see here A H, वैसे ही D और G हो जाएगा, वैसे ही B और E हो जाएगा, F and C हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, इन शॉर्ट कॉर्नर और बॉडी सेंटर का मिड पॉइंट इज 1 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर इन द इनसाइड द सेल, मीन्स वो शेयरिंग पे नहीं होगा, वो सेल के अंदर ही है। कहाँ पर है वो 8? 2 है हर एक बॉडी डायगोनल पे, क्लियर? और टोटल ऐसे 4 डायगोनल्स होते हैं। So this was all about the location of tetrahedral and octahedral voids. Okay friends, so I tried my best to put to you in 2 dimension. मैं 3D पूरा concept बताना चाहा आपको मैंने. Had it been in the class, I would have shown you taking classroom as a cube. Okay. लेकिन यहाँ पर बताना that was not possible. फिर भी मैंने बताया. I tried my best to visualize the entire 3D concept. हमने locations of voids देखे दोस्तों. ओके, आपको इतना ध्यान देना है कि 4 होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड परफेक्ट एब्सिसी में, और उसका दुगना 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? तो एक होता है बॉडी का सेंटर, अब 3 होता है 12 एज के सेंटर में, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, कहाँ होता है? 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। हमने देखा था बॉडी डायगोनल टोटल 4 होता है, और उसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं विच आर मिड पॉइंट ऑफ बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर। एक बॉडी डायगोनल होगा, उसका मिड पॉइंट क्या होगा? बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर कौन सा वॉइड होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रिमेंबर। एंड बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। एनीवे फ्रेंड्स, फिर भी आप बार ये लेक्चर देखना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट द लोकेशन द वॉइड्स। अब आगे के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टॉपिक वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी था डिफिकल्टी थोड़ा भी समझने में, वो इस लेक्चर तक था। ओके, आगे से जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो प्लीज बी ट्यून इन टू माई चैनल दीपक्स केमिस्ट्री जोन। आई एम कमिंग बैक with so many different topics, okay, as long as this lockdown, okay, और उसके बाद भी. So till then, goodbye, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.